सो हेलो गाइस, हम लोग चालू करते हैं। आप लोग एक एक करके अपना डाउट या जो भी रिलेटेड डिस्कशंस है आप लोग पूछ सकते हैं। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किनको भी डाउट है कुछ रिलेटेड टू अगर एसएससी जेईई मेंस या फिर एचपीसीए। हेलो। Hello, bro. ये जो रिसेंट। हाँ हेलो। Hello, bro. I was preparing for GATE as well as HPCL, and I was unable to control the what we call consequences, not consequences. Like I can't focus on single one. That's the main problem I was getting. बट कैन यू I प्लीज was रिपीट? unable to आई prepare डिडंट for गेट यू। both. Yeah, I was अनेबल टू पे preparing फॉर for बोथ? GATE and HPCL. Sorry. आई डिडंट गेट यू, कैन यू प्लीज रिपीट? Uh, Hello, bro. I was preparing for GATE and HPCL. Okay, and I was trying to give my best for HPCL, but I couldn't. I couldn't do it. I was getting low marks in test series and all because it was so detailed, ओके। right? And at the यस। same time, I have to prepare for GATE, right? I was going like I was having the subject as GATE approach. I was approaching the subject in the keeping in the mind of GATE, not for HPCL. And for HPCL, it was very minute details they are asking. If you have seen the last year questions, Yes, 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 yes. See, means that's the main HPCL problem. technical. Yeah, HPCL technical is somewhat more similar to SSC JEE prelims, right? So, Yeah. and if you are focusing on GATE, then might be in some problems of HPCL you will find easy, but some data waste you can't recall, na. So for that you have to do means one-liner questions and all, like from textbook series, test series, or from like youth AEJ books. But yeah, it will be easy Hmm. for the person or the means student who are preparing for the like SSC JEE prelims. And also HPCL is like means 50% is non-tech na. That means there you can score. And the person who is scoring means who is preparing for GATE, they will find very easy means non-tech part. Yes, non-tech was a bit fine, but technical Yes. data questions I was what we call Mm. suffering. And But the more you can do is those like from. minute detail. Yes, I got you. The more you can do is like you will find note down the one liner from the test series all what you are giving, and after that just revise them because you haven't prepared for SSCJ prelims, na. Yes, I haven't prepared for SSC. Then you can do more. But like you will find the one liner in the test series in subject based questions or just note down that. And approx out of 85, 50 question is like what we are prepared for, and more than 20 to 30 questions are like one liner and data based. Yes. So better to note down the one liner from the test series itself, because there is no time to solve pyqs of youth and age problems. See, Mr. Ramu, what Yeah. I'm saying that you are already preparing for GATE. That means your numerical is almost good. Okay, you have a very good command in numericals. So, and also the concept, I Yes. Yes. guess you have the good concept about the subject. The thing is, I will suggest that for this time, you should little focus more on the theory parts also. Means in the notebooks, along with the numericals, also focus on the theory parts. Means the assumptions of different theories and all. You understand? And this is how you can Yeah. get a complete overview of the subject. Means nowadays in every exam, not only numericals are there are also few theoretical questions also. Those will help in your HPCL preparation. And eventually in the PAC engineering service exam also, there also you will find that very small numericals and theory based questions also. Okay. And the main thing is the test series. You must attempt the test series as much as possible.
there will find the number of data type questions, or sometime the factual question which you didn't uh, study in your normal textbook or the normal notes. Okay, so try to collect those questions and gather in a particular copy. Okay, and revise this again and again. Okay, sir. And also one more thing, like solving ESC engineering service PIQs is ultimately helping you in many things. Like, and it will help you for many exams, like every state exams or like next year ESC and HPCL. Like every exams ESC PIQs are helpful. Mm. Okay, sir. Yes. Any more? Okay, sir. That's it from me. That's from my side. Yes. Okay. Next, anyone having any doubt related to this? Means how to prepare and all? यस सर, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कुछ डाउट है सर, उसको पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। हाँ बताओ। जैसे सर हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो जैसे उसमें अगर एसएससी जेई का दिए हैं, जैसे मेंस का दिए हैं या एचपीसीएल का दिए हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो न्यूमेरिकल पोर्शन तो हो जाता है। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हाँ में जो हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक जो होता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है, जो हमें जो हमने हाँ कॉन्सेप्ट पढ़े, सर एक होता है कि अलग से इन्फॉर्मेशन टाइप मिलता है, तो सर उसका तो कोई एंड ही नहीं है, कभी टेबल आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वैसे क्वेश्चन का क्या करें, छोड़ दे? हाँ। नहीं, छोड़ना नहीं है, उसलिए तो फिर मतलब अगर आप एसएससी जी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको उस टाइप का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो डेटा टाइप क्वेश्चन आप बता रहे हो, वो तो बहुत मिला होगा आपको उस टाइम। यस और आप कौन सी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो? ये एसएससी जी मेंस? सर, गेट मतलब सारा गेट, ये सारा एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना भी वही सीन था, मतलब सबके लिए कर रहे थे। तो फिर क्या है ना कि जैसे एसएससी जी में बहुत सारा वन लाइनर आता ही क्वेश्चन, तो उसका मेन जो सोल्यूशन है वही है कि आप जो भी नया टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो टेस्ट सीरीज में या फिर पीवाईक्यूज में, वो सबको नोट डाउन करते रहिए। वो मानते कि उसका लिमिट है नहीं, मतलब कि एंड तो है ही नहीं, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अगर उसको नोट डाउन करते रहेंगे ना, तो कुछ देर के बाद आपको फिर रिपीट दिखने लगेगा। लाइक जो अभी एसएससी जी में मेसन वाला क्वेश्चन आता है ना, मेसन पर डे कितना वर्क करेगा, या फिर एरियाज ऑफ ओपनिंग वाला जो क्वेश्चन है बीएमसीज में एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, तो वो सब क्वेश्चन है कि कुछ देर के बाद आपको फिर रिपीट देखने लगेगा। हम लोग भी जब एसएससी जेई। हाँ बोलिए। सर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट जैसे पढ़ा है, तो हमने हाँ सब लोग हाँ पढ़ा है कि 11 बॉल्स उसमें यूज करते हैं। अब जैसे एक हाँ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है कि ग्रेड डी कंक्रीट के लिए कितने यूज करेंगे, तो वहां पर एक टेबल दे दिया, ग्रेड ए से लेकर ग्रेड एफ का हाँ कंक्रीट ये। कुछ, हाँ ये सब पार्ट को छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली में, ये सब छोड़ना पड़ेगा। 100% नहीं हो पाता था, तो ये ये सब आप इतना छोड़ सकते हैं, लाइक देखिए, टेबल तो सॉरी हाँ। टू इंटरप्ट रोहित, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम्म, इतना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग का भी कुछ एक लिमिट्स होगा ना, एज एस्पिरेंट, यू नो। तो क्या होगा कि हाँ, जितना हद तक आपको लग रहा है कि हाँ इतना पॉसिबल है उतना करिए। जैसे वहां पर और भी बहुत सारे टेस्ट है, टेस्ट का नॉर्मल स्पेसिफिकेशन जैसे क्या होता है कि एक होता है ना कि 10.5 टू 12 mm के बीच से जो पास करेगा, मतलब उसके अंदर जो हाँ, पार्टिकल्स रहेगा। अब ये डेटा याद हाँ। रखिए, या फिर अब ये जो इस बार आया भी था प्री में। एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल जो फ्लैकीनेस इंडेक्स में या फिर इलोंगेशन इंडेक्स में कौन सा जो एक एग्जैक्ट डेटा होता है सिप साइज का, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। अब उसके अंदर लोडिंग रेट कितना होगा, या फिर इस टाइप का तो याद रखना पॉसिबल भी नहीं है ना हर एक सिंगल टेस्ट का। तो उतना आप छोड़ सकते हैं, वो आपको हाँ डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कितना हद तक रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे। एक ऑप्टिमम हम लोग को पढ़ के रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और पढ़ना उतना ही है ना जितना आप रिवीजन कर पाएंगे। आप एक बार तो पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या फिर से तो आप भूल ही सर जाएंगे ना। वही वही तो सर डाउट था कि ऑलरेडी इतना ज्यादा कंटेंट है कि वही आगे का पीछे पढ़ते हैं, पांचवा सब्जेक्ट तो पहला सब्जेक्ट का कुछ भूल जाते हैं, तो इसमें और हर टेस्ट में एक्स्ट्रा ऐड होते जाता है, तो और ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन आप ऐसे मत हाँ सोचिए। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि उस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आता है, हाँ। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा उस टाइप का, एकदम पूरा डेटा ड्रिवन। उसमें से आपको 2-3 याद रहेगा क्योंकि आपने थोड़ा बहुत देख लिया है। बाकी 2-3 आप छोड़ सकते हैं। तो सर इस बार जो एसएससी हाँ। जो और मेंस अभी होने वाला है 4 दिन बाद जैसे, तो उसके लिए हाँ बेसिक न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने गेट जैसे में पढ़ा है,
बहुत ज्यादा लेवल का नहीं। हम्म। और जो जो बेसिक थ्योरी थ्योरी वाले पार्ट जो है, जो मेडिजी में जैसे कोचिंग किया, तो उसका थ्योरी और जो प्री का थ्योरी हम लोगों ने थ्योरी में जो प्री का थ्योरी पढ़ा है, उसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल इतना सफिशिएंट होगा। हाँ, बहुत ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा कि अगर आप एग्जैक्टली ईएससी का पीआईक्यूज बना लेते हैं और फिर गेट का जो बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और सर जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए न्यूमेरिकल्स कुछ रहेगा नहीं। जो मेंस का न्यूमेरिकल्स आप लोग को बहुत मतलब इजी फाइंड करेंगे आप लोग। जो बचेगा वो रहेगा मतलब अदर देन न्यूमेरिकल्स। तो उसमें थ्योरी वोरी पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और जो आप बता रहे कि प्री वरी का नोट्स जो रिवाइज करे वो इनफ ही रहेगा। नहीं सर, क्योंकि प्री के नोट्स में ईएससी के वो वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, जो स्टेटमेंट वाइज वाले बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आए थे। हाँ 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 हाँ, वो नहीं होंगे। तो वो सभी क्वेश्चन तो मतलब टेस्ट सीरीज से कुछ मिलेगा आपको, या फिर कुछ इधर उधर से और कहीं मिलेगा, कोई और एग्जाम दिए होंगे उधर से मिलेगा। तो वो सब का आप लोग को एक नोट्स बना लेना है, जो कि मेनली ईएससी या फिर गेट में वो हेल्प नहीं करेगा, बट ये जो छोटा मोटा एग्जाम होता है ना, एसएससी या फिर स्टेट हम्म, जेई, हम्म, उधर वो सब क्वेश्चन पूरा रिपीट पे आएगा। ठीक है सर, थैंक मतलब बोलना वही चाह रहे कि कुछ एक जैसे ईएससी और गेट का तो पीवाईक्यूज बनाना ही है, वो तो कंपलसरी है। यू। वो तो अब सर मैंने फॉर बनाया मेंस भी के था, लिए जैसे मतलब पहले अभी प्री के पहले भी 2 महीने पहले बनाया था, लेकिन अभी एट द सेम टाइम वो मेरे को सारा डाटा, या जैसे ईएससी के पीवाईक्यू में मोस्टली 60-70% तो बनने ही वाले रहते हैं, लेकिन वो जो 10-20% हाँ जो हाँ एक्स्ट्रा थ्योरी आ जाते हैं, जो हमारे नोट्स में भी नहीं रहते हैं ईएससी पीवाईक्यू के, वो हम्म, करेंटली जो अभी हाँ। नहीं आते हैं, तो वही वो मुझे लग रहा है कि एसएससी जेई में उधर से मत आ जाए। नहीं मतलब वो आप पीवाईक्यूज जब बना रहे हो ना, तो उस टाइम नोट डाउन करते रहना चाहिए, नोट डाउन या फिर मार्क करते रहना चाहिए मिनिमम, कि जब दोबारा आप बनाने जाए ना तो पूरा क्वेश्चन ना देखना पड़े, बस मार्क क्वेश्चन ही देखना पड़े। तो उससे टाइम बचेगा, नहीं तो फिर से जब आप बनाने जाओगे तो पूरा क्वेश्चन फिर से देखना, तो फिर टाइम वेस्ट है ना। क्योंकि जो बनने वाला था एक बार में बनेगा ना, वो हर बार बनेगा। हम्म। अब उसके बाद जो मार्क क्वेश्चन है ना, उसी को तो अब नेक्स्ट क्या है ना, कि मतलब जब भी पीवाईक्यू जैसा बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा मार्क वर्क करके रखने के लिए, मतलब कि जो एक बार में नहीं बन रहा है उस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है सर, थैंक और उसको फिर बाद में जाके रिवाइज करने के लिए। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए इनफ है, इतना उधर से नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। अब कुछ तो 10-20% इनडायरेक्ट यू। मतलब क्वेश्चन सर रहेगा अगर ही। आया भी और उधर, वो उस 10-20% से आया भी, तो मतलब 4-5 क्वेश्चन आना चाहिए, उससे ज्यादा किसी तो से, नहीं आना। और ना आएगा उतना भी ना तो वो किसी से नहीं बनेगा। एग्जैक्टली और उतना आप छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ हाँ सकते, तो अब ये भी देखेंगे ना, ठीक है, कि वहां पर कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर बहुत हम्म, हद तक अटेम्प्ट कर चुके हैं और अगर आपको दिख रहा है कि ये कोई एक थ्योरी आपको याद है, ठीक है, उसके डिटेल सब हम्म, याद है, लेकिन ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मान लीजिए वहां पर दो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये दो तो नहीं होगा, एटलीस्ट जितना आप हम्म, पढ़े हो उस हिसाब से, तो बाकी दोनों में हम्म, आप कभी कभी 50-50 चांस भी ले सकते हैं, उससे बेनिफिट ही होता है। ऐसा नहीं कि रैंडम हर क्वेश्चन में करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। सर मेरा भी एक डाउट था सर एग्जाम को लेकर। हाँ बोलिए। सर जैसे सिविल में तो हर मंथ पीएसयू की रिक्रूटमेंट आती रहती है सर, मतलब ग्रेड बेसिस पे भी हाँ आती है, नॉर्मल एग्जाम भी करना चाहिए। हाँ तो सर ये मतलब जरूरी है कि हर पीएसयू के मतलब फॉर्म के लिए अप्लाई करें और प्रिपरेशन करें, कि जैसे एक फोकस है गेट तो बस उसको लेके चले, नहीं, कि हर वैसे एग्जाम में अपीयर होना बैकअप चाहिए। जब तक, हाँ नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि जब तक बैकअप ना रेडी हो जाए तो कुछ भी जॉब एक होना चाहिए ना हाथ में एक्चुअली। वैसे तो फोकस गेट ईएससी होता ही है, यस। लेकिन जब तक जैसे एचपीसीएल वगैरह, वो तो सिमिलर टू पीएसयूज है ना, जो गेट से रिक्रूट करती है। सब चीज यस। सेम होता है ना, पे स्केल सब सेम होता है। तो नहीं तो सर थोड़ा अगर सिलेबस गेट का में, डिफरेंस रहता है जैसे बाकी एग्जाम में भी और इसमें, मतलब जैसे कुछ एग्जाम में एफटी मतलब ज्यादा आता है, कुछ में नहीं आता है, हाँ तो मतलब जैसे दूसरे हाँ एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ता है, हाँ, नहीं तो वो इस पे जैसे सर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर फोकस आप गेट, डाइवर्जेंस होता है, फोकस। हाँ वो समझा मैं आपकी बात। जैसे आप मान लो कि गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या होगा ना कि आप उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मान लीजिए कि आप कोई अलग से अगर फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं, तो उसका 50% प्रिपरेशन आपका डन रहता है। बाकी 50% करना होता है, जो कि बचता है एफटी, या फिर जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश इंग्लिश किसी किसी एग्जाम में आता है। तो उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब
फोकस होना पड़ेगा, 10-15 दिन प्लानिंग से अगर ओके। फोकस करेंगे तो इनफ होता है। जैसे देखिए, एचपीसीएल के लिए अगर आप, हाँ, 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 रोहित, बताओ बताओ। मैं थोड़ा बताता हूँ। हाँ, देखिए, आपको भी लगता है कि मतलब एक साथ 2-3 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है, वो हम लोग को भी लगता था एक्चुअली। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम देने से सिर्फ मतलब डिस्ट्रैक्शन वो नहीं है, आप जितने बार एग्ज़ाम हॉल में अपीयर कर रहे हैं ना, आपका थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम के ऊपर से मतलब जो भय है ना, जो फ़ियर है, वो भी धीरे-धीरे मतलब ठीक होते जाएगा। उसके बाद लगेगा कि ठीक है, नॉर्मल एग्ज़ाम ही तो है ना, क्योंकि वो भी मैनेज करना एग्ज़ाम हॉल में एक टफ चीज़ होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे एचपीसीएल एग्जाम में आप बोल रहे हैं कि मतलब बहुत किसी का ये डाउट है कि इसके लिए अलग से एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन ये भी सोचिए ना कि गेट में भी एप्टीट्यूड का अच्छा क्वेश्चन आता है। एक पार्ट तो पूरा एप्टीट्यूड का ही आता है। दूसरी बात, इंजीनियरिंग सर्विस में भी इंजीनियरिंग सर्विस में भी अच्छा खासा एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है। तो आप यहाँ पर एचपीसीएल के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वो दोनों आपका बैकअप माइंड काम हो जा रहा है। ठीक है ना? तो मतलब अभी तो मुझे लगता है कि हर एक एग्जाम देना चाहिए जब तक आपके पास कोई एक बैकअप ना हो जाए। उसके बाद आप ऑब्वियसली जो आपका ड्रीम है उसी के लिए आप देखिए बस। ओके सर। गुड इवनिंग सर। हेलो बोलिए। हाँ 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 सर। शिवम। सर हाँ सर, मेरा 4 दिसंबर को सर मेंस है सर। तो उसके लिए सर मेरा 3-4 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? विद्युत एक बार स्ट्रेटेजी बता दो ना। हम्म। हाँ, हाँ। तो आपने आई गेस आपका लगभग प्रिपरेशन हो चुका है ना, मतलब टेक्निकल वगैरह सब यस रिवीजन। सर। यस सर, सब रिवीजन हो चुका है सर। मैं एक बार ईएसी पूरे लगा चुका हूँ जो मतलब डाउटेड वाले थे। और सर कुछ क्वेश्चंस और भी कर लिए मैंने यूथ वगैरह के। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, लास्ट के कुछ दिन में ज़्यादा मतलब रिवीजन नहीं करके जो टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन आया है ना आपका, जो आपसे नहीं बना है या फिर थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? उस टाइप क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। या फिर शॉर्ट नोट से थोड़ा जो फ़ॉर्मूलाज़, बेसिक फ़ॉर्मूलाज़, कि अगर कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप वो भूलें ना, ठीक है? उस टाइप का जैसे रिवाइज़ कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपका प्रिपरेशन लगभग हो चुका है, जस्ट लास्ट 2-3 में बस इतना ही रिवीजन काफ़ी होगा। सर इसमें क्या थ्योरी के भी चांसेस रहेंगे कुछ सर? अप्रॉक्स 50% के अराउंड। ऑब्वियसली थ्योरी भी रहेगा, ज- न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, ठीक है? मैं ऑलरेडी एक वीडियो में यूट्यूब में मैं बोल चुका हूँ, ठीक है? कि यस सर, मैंने देखा है आपकी वीडियो। एग्जैक्टली कि यहाँ पर गेट जैसे पूरा न्यूमेरिकल से भी ज्यादा भरा नहीं होगा, और एसएससी जेई प्रीलिम्स जैसे थोड़ा थ्योरी से भी भरा नहीं होगा। यहाँ पर बैलेंस देखने को मिलेगा। अब थ्योरी में एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा थ्योरी भी नहीं पूछ सकता है, कभी कुछ कुछ थोड़ा ट्रिकी तो पूछेगा ना, क्योंकि मेंस एग्जाम है। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि दो चार स्टेटमेंट दे दिया, इसमें से 1-2 करेक्ट है, 1-2-3 करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको चारों स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद जाके आप टिक कर पाओगे। ठीक है ना? अनि यस सर। सर मेन मैंने बात कुछ क्या है ना क्वेश्चन कि, सर जो हाँ बताइए बताइए। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ क्वेश्चन मतलब ईएससी में मुझसे नहीं हुए थे तो उनको मैंने अलग नोट कॉपी बना के उसमें सारे स्टेटमेंट वाइज लिख लिए। अब उनको भी रिवाइज हाँ, करना चाहिए ना इस समय? वो बहुत वही इंपॉर्टेंट पूछ रहा रहेगा अभी के टाइम पे उसको रिवाइज करना। हूँ। यस सर, क्योंकि क्योंकि थ्योरी भी सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हाँ, और इम्पोर्टेंट अभी है। क्या मैं बता रहा हूँ कि हाँ, कि जैसे ये मेंस का जो ये पैटर्न ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक। एक्चुअली में है पूरा अनप्रिडिक्टेबल। जो भी हो रहा है ये डिसीजन पे चल रहा है कि कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। बट जज किया जा सकता है क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। अब उसमें क्या है कि हम्म। थोड़ा तो मतलब ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। फिर आप जो बता रहे हो ना कि एसी के जो नहीं बना है क्वेश्चन वो आप नोट डाउन करके रखे हो, तो वो रिवीजन करने से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, और प्लस रिपीट भी आप देख ही सकते हो, मतलब उस टाइप का कंसेप्ट तो मिल ही जाएगा आपको इसमें। अब मोर और लेस यस सर। क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ईएससी का पीवाईक्यूज ही आपको कुछ कुछ दिखेगा, या फिर गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो सब दिखेगा। सर सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए अप्रॉक्स? एनी आइडियाज? नहीं, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। वो आप जितना अपना बेस्ट हो रहा है वो दीजिए। सेफ अटेम्प्ट जब तक पेपर ना हो जाए उसके बाद का कुछ पता नहीं चलता है कि कितना अटेम्प्ट होना चाहिए था। वो क्या प्री में कितने मार्क्स है आपके अप्रोक्स? फ्री में 110.25। अच्छा, नहीं फिर सही मार्क्स है 110। फिर उसके बाद से आप मेंस में लग सकते हैं। अटेम्प्ट का मत सोचिए। जैसे 3 आवर पेपर है, मैं सॉरी 2 आवर पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मतलब पहले घंटे में 60 क्वेश्चन देखने का।
फिर सर अभी सेकंड टेस्ट आवर टेस्ट फिर देना से। चाहिए, मॉक टेस्ट, या अब रुक जाना चाहिए, अब नहीं देना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि देना है तो एक दो दे सकते हैं, मतलब लास्ट 2-3 दिन मत दीजिएगा, बस अभी दे सकते हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे उधर मेंस के टेस्ट सीरीज में? सर उधर 160 प्लस माइनस 5 अराउंड आ रहा है। हाँ तो वो अच्छी मार्क्स है, अभी के लिए अच्छी मार्क्स है, और टेस्ट सीरीज के रेस्पेक्ट में भी अच्छी मार्क्स है, लेकिन बात वहीं पर क्योंकि हो जाता है टेस्टों ना की एक्चुअली, हाँ, रोहित, सॉरी, एक्चुअली वही होता है ना कि हाँ, अभी देखो किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल टेस्ट सीरीज कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से टेस्ट सीरीज फॉर्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्चुअल हम्म, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई भी हो सकता है, थोड़ा लो भी हो सकता है, हम्म। ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में एकदम मत सोचिए, आपका जितना 100% है आप दीजिए। कट ऑफ सोच के कि दिमाग में ये डिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा इतना हो जा रहा है तो मतलब मैं सेफ हूँ, तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा ना, बाद में पता चला कि उतना तो सब ला रहा है। वही अभी क्या है कि बेस्ट रहेगा होल प्रिपरेशन करना, लाइक ईएससी का पीवाईक्यूज जो आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करिए, या फिर न्यूमेरिकल्स देखिए, क्योंकि पेपर पूरा अनजजमेंटल है, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। तो है कि होल प्रिपरेशन रहेगा ना, तो कुछ भी आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उतना पैनिक नहीं है, नॉर्मली पेपर आएगा, आपको इजी लगेगा सॉल्व करना, एक बार फ्लो में चालू। और ट्राई करना वही कि लास्ट 10 मिनट पहले खत्म हो जाए पेपर, कि लास्ट 10 मिनट में जो मतलब क्वेश्चन बड़ा होने के चलते या कैलकुलेशन होने के चलते जो नहीं कर पाए वो सब कर सकते हो। और कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना भी बहुत मस्ट है, वो तो शायद टेस्ट सीरीज के साथ हो गया होगा। यस सर। हाँ, दिक्कत नहीं है, वो इजी ही रहेगा पेपर, मतलब जो ईएससी पीवाईक्यूज बनाए हैं या फिर जो गेट के लेवल के हैं वो लोग के लिए मे भी इजी ही रहेगा पेपर। ओके, थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट कोई बोल सकते हैं जिनका भी डाउट है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर टेस्ट सीरीज सर लेकिन सवाल है सर एसएससी मेंस के लिए। उसमें सर मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है सर, लेकिन फिर टाइम कम पड़ रहा है सर। तो सर मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ही मतलब वैसे ही फोकस करूँ, या फिर टाइम पे ध्यान देके थोड़ी सी एक्यूरेसी कम करने की कोशिश देखिए, करूँ। दो चीज होता है, अगर पेपर इजी आता है ना तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करना पड़ता है, और मतलब स्पीड तो करना ही पड़ता है। पेपर इजी है तो मतलब अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना होता है, ठीक। और अगर पेपर टफ रहता है तो आपको मोर एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है, क्योंकि अटेम्प्ट तो कम रहेगा ना, पेपर टफ है तो वो अभी जो है ना कि आपका एक्यूरेसी ठीक आ रहा है, तो अटेम्प्ट अभी कम हो रहा है वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में हो रहा है। और अभी भी सेम बात है कि पेपर पता नहीं कि कैसा आएगा, पेपर थोड़ा इजी आया तो आपका अटेम्प्ट खुद ही पड़ेगा। बस ट्राई करना है कि अटेम्प्ट जित एज मच एज पॉसिबल करना है, बट एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, समझे? है सर। वो मतलब सर अटेम्प्ट मतलब 85 90 85 प्लस হ্যাঁ ঠিক আছে গো। तीन चार क्वेश्चन सर हाँ, 80 जो से। कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से नहीं रिवाइज कर। अब हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो आप कर सकते हैं बट टाइम की वजह से नहीं कर रहे, लाइक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें सिंपली 3-4 मिनट लग ही जाता है मिनिमम। तो वो सब न्यूमेरिकल्स को छोड़ना ही है जो आप शायद अभी कर रहे होंगे, तो वो ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है। मान लीजिए आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो एक दो तो उसमें फैक्चुअल होगा जो छोड़ना ही पड़ रहा होगा, और बाकी जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे तो ठीक है, वो सब छोड़ना ही है। और टाइम की वजह से अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहा है तो ऐसा, इसका वही प्लानिंग वही होता है कि एक फ्लो में जितना क्वेश्चन हो रहा है एक बार में कर लेने के लिए, कि सच दैट इजी क्वेश्चन कुछ ना छूटे, या फिर जो बनने वाला रहे वो क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए एक गो में जितना हो रहा है वो कर लेना चाहिए, लाइक बड़ा बड़ा क्वेश्चन को स्किप करते हुए, या जिस जिस क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन को स्किप करते हुए एक फ्लो में जितना हो रहा है अप टू क्वेश्चन नंबर 100 तक जितना हो रहा है एक फ्लो में कर लेने के लिए, और एक फिर चीज, बाकी बचेगा फिर से घूम के आएंगे। हाँ, जब आप लोग बताओ। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि कोई मतलब आपका फ्लो अच्छा चल रहा है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग का 10 में से 10 क्वेश्चन आपने बना लिया, तब कॉन्फिडेंस में हाई रहता है। तब 11th क्वेश्चन में क्या होता है, मान लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको लगेगा कि ना ये भी तो बनेगा,
अब उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, तब भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आपको बचना है ना, ये दीज़ आर द स्पीड ब्रेकर्स। या इस चीज़ को आपको मतलब ईगो में नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा मेरे से। उसको स्किप करिए उस टाइम में। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप कीजिए। नहीं तो बाद में क्या होगा कि क्वेश्चन देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, कोई ईज़ी क्वेश्चन अगर लास्ट में रह जाएगा तो। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज़ में। यस सर। और सर अब एक तो और वैसे क्वेश्चन था टाइम, सर। हाँ जी सर हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं, आप बोल रहा था कि जैसे अब तो टाइम नहीं है टेस्ट सीरीज उतना, बट अभी जैसे भी 2-3 टेस्ट अगर और आप देंगे तो उसमें वो प्रैक्टिस कर ले कि एक गो में जितना हो रहा है अप टू 100 तक वो कर लीजिए। जो भी बीच में लग रहा है ना कि बड़ा क्वेश्चन है या फिर थोड़ा टाइम लगेगा या सोचना पड़ेगा, तो उसको सिंपली स्किप करिए, क्योंकि बाद में घूम के तो फिर से आना ही है ना। तो ये क्यों स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वो अगर वहाँ पे आप मान लीजिए 4-5 मिनट दे देते हैं और क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लूज़ होगा, फिर उसके बाद क्या पता बने ना बने। इसलिए एक गो में जितना अटेम्प्ट हो पा रहा है वो कर लेने के लिए, जो सिंपली देख के टिक हो रहा है या फिर 1-2 सेकंड में बन रहा है, 1-2 मिनट में बन रहा है, वो सब बनाते रहना है। यस सर। और सर एक और हुँ, एक डाउट था सर। सर जब हम हुँ, जैसे कैलकुलेटर अलाउड है मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर, तो उसमें ये होता है कि सर हुँ, हुँ। दिमाग में मतलब कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं खुद से मैन्युअली सॉल्व करूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करूँ। सर उसमें सर बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए। क्या मैं समझा हम नहीं, एक बार फिर मैन्युअली से बता? जैसे सर कोई भी क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल टाइप, हुँ, उसमें सर हम जब सॉल्व करते हैं बुक में लिख के या पेपर पे लिख के, तो हमको हुँ, मैनुअली सॉल्व करने में क्वेश्चंस रहते हैं इजी जो मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर हमारे दिमाग में डाउट रहता हुँ। है कि हम कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करें या मैनुअली करें। उस सिचुएशन में सर वो क्या तो करना मतलब प्रैक्टिस है, लाइक हाँ, वो प्रैक्टिस है, लाइक जो ईज़ी क्वेश्चन है, तो उसको मैनुअली ही करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर से और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट फिर लाइक जो क्वेश्चन आता है जिसमें लॉग वॉग का यूज करना पड़ेगा या फिर फ्रैक्शन व्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो या फिर डेसिमल में आपको चाहिए कितने आ रहे हैं, तो फिर वो सब के लिए कैलकुलेटर यूज करना है। वो तो मान रहे हैं कि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि कैलकुलेटर है, फिर मैनुअली क्यों करें। बट जो इजी क्वेश्चन है ना, या फिर जितना हो सके जो मैनुअली अगर आप फास्ट कर सकते हो तो मैनुअली ही करना है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना और 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही लगता है। बड़े क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल बहुत होते हैं कैलकुलेटर, बट जो वन लाइनर नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना जो हाथ से हो सकता है, उसके लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। है। यस हाँ, थैंक यू मतलब सर। वो सर डिसीजन एक्चुअली आपको खुद लेना है कि हाँ। यस सर। सर एक्चुअली जो है मैं फर्स्ट टाइम जो है एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ गाइडेंस दीजिए। मतलब प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। तो आई गेस आप कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? जी जी जी, जैसे कि मैं अभी 23 में जो है डिप्लोमा पास आउट हूँ एंड बीटेक भी कर रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ एसएससी जेई की। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप मतलब जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, मान लीजिए कि जो जी कॉलेज में एनवायरनमेंट या फिर सॉयल चल रहा है, तो उसके साथ साथ ही आपको कोई कोचिंग का अगर कोई मटेरियल मिल जाता है, कोचिंग अगर करते हैं तब तो ठीक है। अगर कोचिंग नहीं भी करते तो उसका मटेरियल आप ले लीजिए और वहां से कॉलेज के साथ साथ ही वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी अभी बहुत है। ठीक है, तो एक कॉलेज में जी एक सेमेस्टर में मान लीजिए 4-5 अच्छे सब्जेक्ट है, तो कोशिश करना कि 6-7 महीने में वो 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए, along with कोई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट ईएससी, these all things। ठीक है ना? ओके और ओके। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। अब क्या होगा कि कॉलेज आपको एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो स्टार्टिंग वाला का कोई यूज नहीं रहेगा, लेकिन वो नहीं करना है। सेम टाइम में शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसी को रिवाइज करते रहना। उसके उससे क्या होगा, जब जब तक आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, ठीक है, आपका मतलब जी प्रिपरेशन एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। और डिप्लोमा आपका ऑलरेडी हो चुका है, आप तो सॉरी, आप तो एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है, तो साथ साथ एग्जाम भी दे ही सकते हैं ऑब्वियसली। जी सर। और किसी को कुछ पूछना है क्या? गाइस टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, जैसे अगर मैं रियल
तो एक मार्क का लेवल सेट हो गया, जैसे 50% के आसपास, उसके ऊपर बढ़ते नहीं है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ कुछ भी कर लूँ। तो उसके लिए क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि रियल एग्जाम में भी मेरे मार्क इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? मतलब आप SSC मेंस के लिए बात कर रहे हैं या फिर कोई भी जी हाँ, नॉर्मल एग्जाम? मेंस नॉर्मल एग्जाम जैसे एई वगैरह भी मैंने दी थी, लेकिन उसमें भी जो मार्क है सेम ही है, 50% के आसपास, उसके ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहे। और एक दूसरी बात, गलतियां जो हो रही है वो मिनिमाइज नहीं हो पा रही है। जैसे तो वो 100 गलतियां 100 का क्वेश्चन है, मिनिमाइज करने, हाँ 100 बोलिए। क्वेश्चन है तो 85 अटेम्प्ट भी कर रहे हैं मैंने, तो 20 से 30 मार्क, 30 क्वेश्चन तो गलत होते ही। हाँ देखिए, गलतियों को सुधारने का बेस्ट जो तरीका होता है ना कि आप वो प्रैक्टिस से सुधरता है एक्चुअली। और अगर आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज में आपको जो जो गलतियां हो रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए, और ऐसा नोटिस या दिमाग में रखिए कि फर्दर ये वाला मिस्टेक नहीं करना है, बाकी नया कुछ मिस्टेक हो वो चलेगा। अब बाकी जो आप नोट डाउन मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो वो फिर नहीं होगा। और मिस्टेक्स भी क्या है ना, लिमिटेड मिस्टेक्स होती है। तब अगर एक डायरी में या एक कॉपी में अगर अपनी सारी मिस्टेक्स नोट डाउन हो जाएगा ना, तो वो रिपीट नहीं करना है। तो आपकी एक्यूरेसी ऐसी फिर सुधरते चली जाएगी। लाइक बहुत जैसे सिंपली एक मिस्टेक होता है, लॉग और एलएन का यूज कर लेते हैं, जहाँ पे लॉग 10 बेस 10 होना चाहिए, वहाँ पे एलएन यूज कर लेते हैं, तो आंसर ही अलग आ जाता है। तो ये सब को कि ध्यान में रखना है कि कहाँ कौन से फॉर्मूला में एलएन आता है और कहाँ पे लॉग बेस 10 आता है। और गलतियां सुधारने का तरीका वही है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज में गलतियां हो रहा है ना, उसको नोट डाउन करना मस्ट है। वो नोट डाउन करेंगे तो सिंपली फिर वो गलतियां रिपीट नहीं होगी, तो धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। सर आपका दूसरी अटेम्प्ट तो बात, वैसे सही है। हाँ सर दूसरी बात ये है बोलिए। कि जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम होती है, असिस्टेंट हाँ इंजीनियर वाली, उसके लिए हाँ। पीएससी के क्वेश्चन ज्यादा लगाना चाहिए या यूथ, इनमें से दोनों, क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो उसमें आता है उसके लिए क्या लेना चाहिए? देखिए रोहित, मैं इसका नहीं आंसर वो तो करता हूँ। मैंने, हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि ना, पहले आप अगर इनिशियल फेज में है प्रिपरेशन के, तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में मत सोचिए। ये मेरा ऑलवेज यही सजेशन रहता है कि आप होलिस्टिकली सोचिए कि आपको कोई कंसेप्ट सीखना है पहले, ठीक है ना। कोई एक सब्जेक्ट, अगर कोई सॉइल इन्फो या फिर कोई भी सब्जेक्ट, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़िए। कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितना क्वेश्चन अवेलेबल है, वो गेट हो, वो ईएसी हो, वो यूथ हो, आप जितना करेंगे वो आपका ही प्रॉफिट है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अभी क्वेश्चन का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि कुछ-कुछ स्टेट एई जेईई में बेसिक क्वेश्चन जो कुछ-कुछ यूथ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता था, ठीक है। अभी कुछ-कुछ एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हो रहा है। वो लोग ईएसी से भी क्वेश्चन पिक कर रहा है, या फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ गेट भी वो लोग पिक कर रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग वहाँ हाँ। पर एक होलिस्टिकली प्रिपरेशन कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, कोई पर्टिकुलर एग्जाम, तो वो लोग का परफॉर्मेंस ऑलवेज हर एग्जाम में बेटर होगा, ठीक है ना। और दूसरा एक बात जो मिस्टर रोहित ने बोला, उसके जो कि आपका मार्क्स नहीं आ रहा, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हम लोग का क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट पढ़े हैं, मतलब थ्योरी में, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते टाइम आधा क्वेश्चन पढ़ के हम लोग जज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और उस हिसाब से आंसर टिक करके निकल जाते हैं। तो इसमें बहुत कुछ मिस्टेक होता है। जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन में हम लोग आधा पढ़े हैं, लेकिन देखे नहीं कि लास्ट में पूछा है इनमें से कौन-सा नहीं है। वो जो नॉट एक हाँ। है, इसमें बहुत कोई फँसता है, ठीक है ना? तो वो सब हाँ। चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन में यूनिट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी एसएससी मेंस में शायद मेंस में भी ये दिखेगा आपको, ठीक है, कि आपको कोई आंसर एक आया, आपने टिक कर दिया, आपने वहाँ पर देखा ही नहीं हुआ 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम डेटा है, लेकिन पॉइंट इधर-उधर है, मतलब क्या यूनिट चेंज कर दिया है, ठीक है ना? तो उस सब चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ओके सर। हुँ। सर जैसे जैसे कि रीजनिंग के अलावा जो नॉन टेक के सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एसएससी जेईई के लिए? क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन?
सर जैसे कि रीजनिंग के अलावा जो नॉन टेक के सब्जेक्ट होते हैं उनमें से मतलब कौन से सब्जेक्ट हाँ, को ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए जिससे मार्क्स जो है इंक्रीज हों? कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा, लाइक आप कोई भी जैसे एचपीसीएल की उठा लो, या फिर एसएससी जी प्रीलिम्स की नॉन टेक जो पार्ट है, वो जो 50 मार्क्स की होती है रीजनिंग, उसको उठा लेंगे अगर, तो फिर उसमें क्या है कि आप सिलेबस देख लीजिए पहले क्या क्या है। उस सिलेबस में से आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा पार्ट आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। जो पार्ट नहीं आता है सर उसका यूट्यूब पे वीडियोस आप बहुत सारा देख सकते हैं अपने कंसेप्ट को सुधारने के लिए, उस पार्ट रिलेटेड टू पार्ट। फिर टेस्ट सीरीज देते रहिए और प्रैक्टिस से ही रीजनिंग सुधरता है। जैसे कि रीजनिंग के अलावा मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं नॉन टेक के हिस्ट्री वगैरह और जनरल साइंस होता है उसमें हाँ से मतलब हाँ। कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए कि मार्क्स इंक्रीज हों? लाइक जो 50 मार्क्स के जो फिर जीएस के पोर्शन आते हैं एसएससी जेई में, जी जी जी। उसमें क्या है कि कुछ पार्ट्स है जो इजी होते हैं या फिर हम लोग से रिलेटेड होते हैं, जो 10 12 में पढ़े हुए रहते हैं, लाइक बायो हो गया। उससे कुछ कुछ टर्म है जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर स्टडी ऑफ मतलब एनीथिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब आता ही है। फिर फिजिक्स से भी कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे मोटे। तो ये सब जो साइंस वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं। फिर बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ये सब में क्या है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो जिसमें आपको थोड़ा आइडिया, वो सब देख सकते हैं। उसमें जजमेंट नहीं कर सकते कि किससे ज्यादा मार्क्स आएगा या किससे नहीं आएगा। लाइक ज्योग्राफी से है कि थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है और थोड़ा ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी होता है, तो थोड़ा आप देख सकते हो ज्योग्राफी को, बट मेनली फोकस साइंस पे कर सकते हैं। और जीएस पोर्शन वैसे पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है, उस पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते हम लोग। तो बेसिक फंडा वही होता है कि रीजनिंग और टेक्निकल पे पूरा रिलाई करके बाकी जीएस में जो थोड़ा मोड़ा मार्क्स आ जाए वो फायदा ही होता है। और देखिए एक चीज यहाँ पर होता है कि बहुत कोई सोचता है कि उसका मतलब जीएस बहुत स्ट्रांग है तो वो लोग और ज्यादा कोशिश करते हैं जीएस को और स्ट्रांग बनाने के लिए। उससे क्या होता है टेक्निकल में थोड़ा वो लोग सोचता है कि लैग करने से भी हो जाएगा। उससे प्रीलिम्स तो अच्छे खासा मार्क्स से निकल जाता है, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा मेहनत जीएस में किया है, ठीक है, टेक्निकल में थोड़ा कम मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा मेंस में, क्योंकि वहां पर तो पूरा टेक्निकल रहेगा। ठीक है ना? तो ट्राई टू यूज योर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मेंस। ठीक है, मत मीन्स टेक्निकल पार्ट, एंड थोड़ा बहुत जितना टेक्निकल, हो हाँ। सके उतना आप जीएस में कीजिए, ताकि अगर आपका एक डिसेंट मार्क्स आ जाए बस प्रीलिम्स में। बाकी मेंस में मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है या फिर एंड करते हैं? हेलो, किसी को डाउट है क्या कुछ? नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को। नो सर। ठीक है तब तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। होप आप लोग का सबका जो डाउट्स है थोड़ा बहुत क्लियर कर पाए हम लोग। ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट। जो एग्जाम है अभी थैंक यू पाइल्ड सर। अप एग्जाम है, आप लोग का सबको पता है कि अभी शेड्यूल बहुत टफ चल रहा है आप लोगों का शायद, लेकिन ठीक है। हाँ, अभी बहुत एग्जाम्स है, प्री है, मेंस है, फिर यस सर। सीडब्ल्यूसी का भी एक एग्जाम है 5th को। इसरो है, एचपीसीएल है, एसजेवीएन। एग्जैक्टली exactly। तो इससे क्या होगा, आप इस हाँ टाइम में थोड़ा ज्यादा अच्छे से एफोर्ट दे देंगे ना, तो मतलब आपका प्रिपरेशन का अगर पिक अगर अभी चल रहा होगा, तो आपका एक एक एग्जाम, हर एक एग्जाम निकलते जाएगा। ठीक है ना? एक अच्छा चीज भी है, तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। हाँ, और वैसा भी एग्जाम बेस्ड फोकस मत रहिए, जो हो रहा है सब पे थोड़ा थोड़ा टाइम देके सबको कोशिश करना। ठीक है, फिर एंड करते हैं हम लोग सेशन को। विद्युत, वी आर एंडिंग, हाँ। ओके ओके श्योर।